Hello and welcome to fourth session of our quadrilateral. Today we are going to start our exercise 8.1. So let us begin. Our very first sum. If the diagonals of parallelogram are equal, show that it is a rectangle. ठीक है, आपको दिया क्या है, पैरेललोग्राम दिया है और प्रूव क्या करना है, you need to prove that it is your rectangle. So let us make a rectangle only, A, B, C, D. But what is given to us? First and foremost thing, that quadrilateral ABCD is a parallelogram. And second thing, वापस question पढ़ोगे तो what you get is show if the diagonals of parallelogram are equal. Diagonals are equal. That means can I say that AC is equals to BD? So what is given? AC is equals to BD is given. Then what next? What you need to prove? We need to prove that this parallelogram ABCD is a rectangle. What is the definition of rectangle? Can anyone tell me what is the definition of rectangle? A parallelogram having all four angles 90 degree, or you can say right angle, then we can say that it is a rectangle. तो आपके पास पैरेललोग्राम तो है, आपको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को क्या प्रूव करना है कि दे आर 90 डिग्री. ठीक है, अब ऐसे दो ट्राइंगल लो जिसमें पूरे के पूरे एंगल ए आ सकता हो, एंगल बी आ सकता हो, एंगल सी आ सकता हो या एंगल डी आ सकता हो. ठीक है, पूरे दो ट्राइंगल, ऐसे बड़े ट्राइंगल सोचो, छोटे ट्राइंगल सोचो, लेकिन पूरा ए पूरा बी आना चाहिए, पूरा सी या पूरा डी आना चाहिए. ठीक है, तो कैन आई राइट, ये देखो ए डी सी और उसके साथ बी सी डी दिख रहा है ईच एंड एवरीवन. तो प्रूफ, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी सी विथ ट्राइंगल बी सी डी कॉरस्पॉन्डेंस का तीन क्राइटेरिया. एक तो दिखता है, कौन सा है वो, DC is equals to CD कॉमन. DC equals to CD क्या है, कॉमन. Then can I say AB and CD are equal? या सॉरी, ये तो है ही नहीं, हम लोगों ने लिया ही नहीं है ये वाला. AD and BC are equal, yes or no? Why? Opposite sides of parallelogram. AD is equals to BC. यहाँ पे आप लोग थियरम 8.2 ऐसा भी लिख सकते हो कि opposite sides of parallelogram are equal. And last but not the least, कौन सा आएगा अब, ये एक है और ये दूसरा है. तो what is given to us? Diagonals are equal. तो can I write AC is equals to BD? क्या हुआ ये, ठीक है. Diagonals are equal, or you can write it as given to us. कौन सा criteria आया now? This is your SSS criteria. So by SSS criteria, triangle ADC is congruent to triangle BCD. Okay? And now try to understand by CPCT. ये बड़े दो एंगल, ये और ये इक्वल होंगे by CPCT. So angle ADC is equals to angle BCD. Okay? अब ध्यान देना, these two lines are parallel. Yes or no? As they are parallel, तो ये तो एंगल्स क्या होंगे, ध्यान से देखना. ये दो लाइन भी parallel है, ठीक है. तो what can you write about this? They are interior pair of angles on the same side of transversal. As they are interior pair of angles on the same side of transversal, can I write कि इन दोनों का टोटल क्या होगा, इन दोनों का टोटल होगा 180 डिग्री. ठीक है,
अब एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? वो लिखने का इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, ADC एंड BCD ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इंस्टेड ऑफ ADC आई विल राइट BCD। तो BCD प्लस BCD इज इक्वल्स टू 180। 2 टाइम्स एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल BCD क्या आएगा मेरा? 90 डिग्री। इफ एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन एंगल D विल बी 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और ये क्या दिया हुआ है? दिस इज अ पैरेललोग्राम and we have proved that opposite angles of parallelogram are equal. That means angle C का opposite angle A which is 90 degree, angle D का opposite angle B 90 degree. Now what is the definition of rectangle? In parallelogram, if all 4 angles are 90 degree then it is a rectangle. Hence or therefore you can say parallelogram ABCD is a rectangle and hence proved. Note it down everyone. Sum number 2, very important, 4 marks question. Show that in square diagonals are equal and bisect each other at right angle. Try to understand, हाँ? एक ही क्वेश्चन दिया है, गिवन एक ही चीज है, और वो क्या है? वो है स्क्वायर। उसमें आपको क्या प्रूव करना है? उसके दोनों डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। दूसरा क्या प्रूव करना है? डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है? वो बाइसेक्ट कर रहे हैं कि कौन से एंगल पे? राइट एंगल पे 90 डिग्री पे। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट सम। हाँ, लेट्स से ये मेरा स्क्वायर है ABCD। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर। दैट इज व्हाट यू आर गिवन विद। व्हाट यू नीड टू प्रूव, बहुत सारी चीज है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, AC इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल। तो AC एंड BD, AC इक्वल्स टू BD। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। दूसरा क्या प्रूव करना है? दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है O। ठीक है, कल हम लोगों ने जो थियरम्स देखे थे याद है? ठीक है, कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा वाला हम लोगों ने देखा था, थियरम नंबर 8.6। यही ऐसा ही चीज यहाँ पे भी प्रूव करना है। क्या? कि AO इक्वल्स टू CO एंड BO इज इक्वल्स टू DO। और थर्ड लाइन ऐसा बोला है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री राइट एंगल। तो ये चारों 4 एंगल आपको क्या करने हैं? प्रूव 90 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स यू नीड टू राइट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल DOA एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज व्हाट यू नीड टू प्रूव। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्रूफ में देखो, आपको पहले क्या प्रूव करना है? AC इक्वल्स टू BD। तो जैसे प्रीवियस सम किया, ठीक है, 2 बड़े ट्राइंगल लो जिसमें AC और BD आए। तो एक है ADC और दूसरा है BCD। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ADC विथ ट्राइंगल BCD जो चीज दिख रही है वो है DC इक्वल्स टू CD। ये क्या है मेरा? कॉमन। देन कैन आई राइट AD इक्वल्स टू BC? व्हाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, या साइड्स ऑफ स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि सारी साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है? इक्वल। साइड्स ऑफ स्क्वायर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर?
कि अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों चार एंगल क्या है, 90 डिग्री है। दैट मीन्स कैन आई राइट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। ये कैसे एंगल्स हुए, राइट एंगल्स। तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD 90 डिग्री ईच। अब ये कौन सा क्राइटेरिया बना, दिस 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 इज योर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ADC is congruent to BCD। यहां से हमको क्या मिला, अब अपना को प्रूव क्या करना है कि both the diagonals are equal, as both the diagonals must be equal। तो यहां से मिलेगा मुझे क्या, by CPCD AC is equals to BD। ये केस नंबर 1 प्रूव। अब केस नंबर 2 देखो, क्या प्रूव करना है, AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO। जैसे कल दो ट्राइंगल्स लिए थे, अपोजिट दो ट्राइंगल्स ले लो, छोटे वाले, ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOB विद ट्राइंगल COD, ठीक है। अब AB और CD इक्वल होंगे, बराबर है, why they are equal, opposite sides of square। तो AB equals to CD, या sides of square ऐसा भी लिख सकते हो, sides of square। Then what can you write about this, another thing, can I write यही चीज OAB is equals to OCD, alternate pair of angles, जैसे कल देखा था, the same thing, OAB is equals to OCD, alternate pair of angles। And then what we have to do, another thing, अब क्या बचा, OBA is equals to ODC, ये भी क्या हो गया, alternate pair of angles। ओके, नेक्स्ट अब क्या, कौन सा क्राइटेरिया आया, देखो ध्यान से देखना है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है। तो बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल AOB is congruent to COD, बराबर है। एंड देन बाय CPCT AO is equals to CO, BO is equals to DO, hence proved case number 2। अब क्या करना है, आपको ये चारों चार एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। As you want this all four angles 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपके ये दो बाजू बाजू के एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब जाके हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यूज करेंगे, 6 चैप्टर का कंसेप्ट। एंड देन वी कैन प्रूव कि ये दो अगर 90 है तो अपोजिट भी क्या होंगे, 90। और फिर हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, चारों एंगल 90 प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल, अब बाजू बाजू के देखिए, इसके स्टेप्स है ना, दिमाग में रखना। पहले दो बड़े ट्राइंगल, बराबर है, दूसरे में दो अपोजिट ट्राइंगल्स, अब दो बाजू बाजू के ट्राइंगल्स। तो AOD के साथ इन ट्राइंगल AOD विथ बाजू में कौन सा आएगा, चलो बताओ, ये वाला लिया है, तो अब क्या आएगा, AOB, ठीक है। सबसे पहले कैन आई राइट AO इक्वल्स टू AO, क्यों भाई, कॉमन है। देन OD इक्वल्स टू OB, ये रहा, बराबर, प्रूवन। और AD इक्वल्स टू AB, क्यों भाई, बाजू बाजू की साइड, स्क्वायर की चारों चार साइड क्या होगी, इक्वल। तो AD इक्वल्स टू AB, स्क्वायर साइड्स ऑफ square, again which criteria,
SSS criteria से AOD is congruent to AOB, and then what can I write? By CPCT, angle AOD is equals to angle AOB. अब ये डायग्राम को ऐसे देखो, आगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यस, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AOD प्लस AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कहां से लाए? एक्सियोम नंबर 6.1, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब ये दोनों क्या है? इक्वल है. तो 2 टाइम्स एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल AOD क्या आ गया? 90 डिग्री. ठीक है. अब एंगल AOD इज 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली AOB क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि बोथ आर इक्वल. AOB इज इक्वल्स टू COD. क्यों भाई? ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंड सेम वे ये जो है अपना AOD के सामने क्या है? AOD के सामने BOC. ठीक है, या एक्चुअली COB आएगा. COB ये भी क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो अब चारों चार एंगल का वैल्यू क्या आ गया? 90 डिग्री. Therefore AOB is equals to BOC is equals to COD is equals to DOA, and that is equals to 90 degree. Hence proved. Sum number 2 over. ठीक है, note it down everyone. Number 3, very important. Diagonal AC of parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C also, and prove that ABCD is a rhombus. So what is given to us? First and foremost thing कि ABCD पहले तो एक parallelogram है. So I am drawing ABCD is a parallelogram. तो given में भी वही लिखूंगा. Given quadrilateral ABCD is a parallelogram. Then what is given to us? That angle A bisects is. कौन bisect कर रहा है एंगल A को? diagonal AC. तो AC bisects angle A. That means let's say this is angle 1 and this is angle 2. Then can I say angle 1 is equals to angle 2 is what you are given to us. ठीक है, what you need to prove कि AC bisects angle C. बराबर है. तो let us give this as angle 3 and angle 4. तो आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है. ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? इक्वल है. और दूसरा क्या प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ABCD इज रोम्बस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोम्बस? ठीक है, रोम्बस में क्या होगा? अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल 4 साइड्स इक्वल. ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है इसमें कि AB must be equal to BC, must be equal to CD, must be equal to DA. ये आपको प्रूव करना है. प्रूफ ध्यान दे दो. प्रूफ के लिए सबसे पहले what is given to us? तो can I write angle 1 equals to angle 2 given to us? बराबर है. अब ध्यान से देखना, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 होगा. क्यों? तो देखो Z बन रहा है और ये पैरेललोग्राम है. Z बना. ठीक है, तो कैन आई राइट कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. क्यों? ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स. एंड सिमिलरली यहां पे देखो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल, ये देखो ये भी Z बन रहा है. तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4.
ये भी क्या है, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, देन व्हाट, अब देखो एंगल 1 2 के बराबर है, 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और 4 किसके बराबर आपको लाना है, 3 के बराबर। If angle 1 is equals to 2 and angle 1 is equals to 3, then याद करो यूक्लिड का एग्जाम नंबर 1, थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another. तो कहना इसे angle 1 is equals to angle 2, angle 1 is equals to angle 3, therefore angle 2 is equals to angle 3. बराबर है? Now what we need to prove? Angle 3 is equal to angle 4 प्रूव करना है। अब एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 भी है। देन व्हाट कैन आई से, अगेन यूक्लिड का एग्जाम नंबर 1, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, देयरफॉर कैन आई से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। पहला जो हमारा टास्क था वो खत्म हुआ कि हेंस प्रूव। बराबर है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये वाला बहुत मजेदार है। अब आपको इसमें कंसेप्ट ऑफ थियरम 7.2 यूज करना है, ट्रायंगल का कंसेप्ट। ठीक है, ट्रायंगल का कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, थियरम 7.2 का, कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। सॉरी, थियरम नॉट 7.2, थियरम 7.3 कन्वर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल DAC दिख रहा है, DAC ये वाला। अब ये देखो, ये चारों चार एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो कहना इसे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है, DC, बराबर है, और एंगल 4 की अपोजिट क्या साइड क्या है, AD, तो DC इज इक्वल्स टू AD। ओके, सेम वे इन ट्राइंगल ABC है ना, इसे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, तो एंगल 2 की अपोजिट साइड क्या हो गई, BC, और एंगल 3 की अपोजिट साइड क्या हो गई, AB। इसको ना हम लोग नंबर्स दे देते हैं 1, इसको नंबर दे देते हैं 2। अब ध्यान से देखो, ये हमको क्या गिवन क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का थियरम 8.2 हमको क्या कहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बराबर है? तो AB का अपोजिट साइड क्या है, CD, BC का अपोजिट साइड क्या है, DA। इसको नंबर 3 दे दो और लिखो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या तो थियरम 8.2। बराबर है? अब AB जो है BC के बराबर है यहाँ पे, और AB जो है वो CD के बराबर है। AB इज इक्वल्स टू BC, बराबर, एंड BC इज इक्वल्स टू DA, एंड DA इज इक्वल्स टू DC, DA is equals to DC। ये चारों चार from 1, 2 and 3, what we can say, things which are equal to the same thing are equal to one another. That means all 4 sides are equal. Therefore AB equals to BC equals to CD equals to DA। ये क्या हुआ, therefore parallelogram ABCD is a rhombus, hence proved। And now you can note it down, this sum as well. Okay, sum number 4th and probably today's last। ABCD is a rectangle in which AC bisects angle A and angle C। जो अभी देखा वैसा ही सम है। ठीक है, what you need to prove that ABCD is a square, and second, diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ठीक है, तो सबसे पहले what is given to us, तो वो रेक्टेंगल है, लेकिन प्रूव क्या करना है, स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर ही बनाऊंगा। ठीक है, जो प्रूव करना है वो, एंड नोट इट डाउन दिस एज ABCD एवरीवन। ठीक है, देन गिवन सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल।
एंड क्या दिया है, AC, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। नाउ गिव नंबर्स लाइक दिस, angle 1 equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4. This is what you are given with. So angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4. What you need to prove? First case, that quadrilateral ABCD is a square, ये प्रूव करना है। अब स्क्वायर प्रूव करना है तो रेक्टेंगल की स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल फोर साइड्स इक्वल, ठीक है, अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल फोर साइड्स इक्वल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रूफ, क्योंकि सेकंड वो लिखना बाकी है इसीलिए प्रूफ ध्यान से देखो, ठीक है। इन प्रूफ कैन आई राइट, देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन टू अस, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ये क्या है, गिवन टू अस। बट कैन आई राइट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। एंड सेम वे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये किस लिए लिखा, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स यूजिंग Euclid axiom number 1. Things which are equal to the same thing are equal to one another. The angle 1 equals to angle 2, angle 2 equals to angle 3, and angle 3 equals to angle 4. So can I say angle 1 equals to angle 2 equals to angle 3 equals to angle 4. Now see this triangle. In triangle ADC दिख रहा है, angle 1 is equals to angle 3, ठीक है। अब एंगल 1 की अपोजिट साइड क्या हुई, CD, एंगल 3 की अपोजिट साइड क्या हुई, AD। क्या यहां से लेके आए, यूजिंग थियरम 7.3, ठीक है। देन CD इक्वल्स टू AD हो गया। अब इन ट्राइंगल ABC दिख रहा है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 की अपोजिट साइड है BC, और एंगल 4 की अपोजिट साइड क्या है, AB। ये भी कहां से आया, थियरम 7.3 से, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। नाउ सी, ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या होगी, AB मस्ट बी इक्वल्स टू CD एंड BC मस्ट बी इक्वल्स टू DA, opposite sides of rectangle, ठीक है। अब ध्यान से देखो AB, ठीक है, AB is equals to BC, BC is equals to DA and DA is equals to CD. Then can I say therefore AB equals to BC equals to CD equals to DA. In a rectangle, if all four sides are equal, then it is a square. Therefore ABCD is a square. Now you are asked सेकेंड नंबर का प्रूफ, ठीक है। ये पहला केस खत्म हो गया। सेकेंड नंबर में आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रूव कि BD जो है, डायगोनल BD जो है बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ इट अगेन, डायग्राम वापस ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, ये चला जाएगा, ठीक है। और उसकी जगह हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, BD, ठीक है। और यहां पे नंबर दे दो, लेट्स से एंगल 4 तक था ना, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लूंगा कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8, क्यों, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स।
सेम वे एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। क्यों भाई? दोनों क्या है? ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। उसके बाद ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो ये स्क्वायर है, हम लोगों ने प्रूव किया स्क्वायर है, तो स्क्वायर की चारों चार साइड इक्वल है, स्क्वायर की चारों चार साइड इक्वल है। तो अब ये वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ADB दिख रहा है, ये वाला, कैन आई से AD इज इक्वल्स टू AB? क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड है, ऑलरेडी यहां पे हम लोगों ने प्रूव भी किया है। तो AD के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल 7। और AB के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल 5। कहां से आया? थियरम 7.2 की अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है इन अ ट्राइंगल, देन उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। सेम वे इन ट्राइंगल, अब देखो दूसरा कौन सा देखना है? BCD, BC इक्वल्स टू CD, तो BC का अपोजिट एंगल एंगल 6 और CD का अपोजिट CD का अपोजिट एंगल एंगल 8। अगेन थियरम 7.2। नाउ कैन आई से एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। क्यों? क्योंकि ये देखो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8 है, बट एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है, ठीक है। और एंगल 6 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 8 के। मतलब चारों चार एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। द थिंग व्हिच वी नीड टू प्रूव इज कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 and angle 7 is equals to angle 8. That means BD bisects angle B as well as angle D. Hence proved. If you have gone through this entire video, please do like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. Sanket Purohit, thank you very much.